मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक। तो जब आप उनको सोर्स करोगे तो वो आपको 15 से 20 हज़ार के शूज़ पड़ेंगे, वर्सेस दिस वन is only for rupees 1500. Teammate of mine have been using these shoes for 2 years now, but क्योंकि इनकी शेप और डिजाइनिंग थोड़ी बहुत Puma RS सीरीज से मिलती है, these one are a great alternative to these shoes. Lastly about these shoes, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, especially if you are in your college. Sneakers काफ़ी ट्रेंडिंग है and this trend is to stay, but these pieces can be a little expensive. Hi, my name is Vaibhav Keswani, your Imagine Style Coach, और आज की वीडियो में मैं इन एक्सपेंसिव पीसेस के बजट ऑल्टरनेटिव्स दिखाने वाला हूँ that are totally worth it. Now you need to understand, I'm not going to show you copies of Nike, Puma or Adidas. I'm just going to show you pieces that are inspired from these shoes or are similar to these shoes. And एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा, for everyone who is actually fond of fashion, style and trends, do not wear duplicates, do not wear those copies. उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. You do not really get to feel that brand. Instead you can go for similar alternatives जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ. But जब आप afford कर सकें, then go for these brands and trust me, this is not just a piece of shoes but an experience. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन पीसेस को स्टाइल कैसे करना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, हाउ टू बी मोर फैशनेबल, देन मेक श्योर यू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। Alright, so the first sneaker on my list are these black and white sneakers. These are mid top जो inspired है Nike के पांडा से। Nike की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो करीब 9,500 के मिलते हैं, बट आपको उसमें कभी भी साइज नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक। तो जब आप उनको सोर्स करोगे तो वो आपको 15 से 20 हज़ार के शूज़ पड़ेंगे, वर्सेस दिस वन इज़ ओनली फॉर रुपीज़ 1500। ओवरऑल इसकी स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, विच इज़ वन थिंग दैट आई लुक फॉर व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर अ बजट स्नीकर। ऑफ कोर्स इसका मटेरियल उतना हाई एंड नहीं है, बट येस, अदर देन दैट लुक्स वाइज इट्स प्रिटी गुड। However, one thing that I personally did not like is the branding here. अगर मैं ये शूज़ यूज़ करूँगा तो मैं डेफिनेटली इसको पेंट कर दूंगा। Now talking about the fit and comfort, जब मैंने इनको पहन के देखा था, इनकी फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। Genuinely the fit was really good. The comfort is also good, especially अगर आपने कोई बहुत high end sneaker नहीं पहना है और अगर आपके पहले sneakers हैं in mid tops, then definitely आपको काफ़ी ज़्यादा comfortable लगेंगे। Last but not the least, one thing that I love about this color combination is the versatility and ease of use. You cannot even imagine the number of outfit combinations you can literally style these up with. Other than that, कोई भी occasion है, चाहे आपको कॉलेज में जाना है, डेट पे, पार्टीज पे for that matter, this is one shoe that you can definitely wear. नेक्स्ट बजट स्नीकर को इस लिस्ट पे लाने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था बिकॉज these sneakers I just bought recently for 8,000 rupees and these sneakers right here are only for rupees 650 rupees. Now this one in particular are very very similar to these sneakers out there. इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है लुक्स वाइज दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा स्ट्राइप ओवर हियर, बट दैट इज अबाउट इट। इवन जो ब्रांडिंग है उसमें ये वाला जो कलर है ना, वो तक गोल्डन यूज किया हुआ है। ना ऑब्वियसली 8,000 और 650 रुपये में क्वालिटी का, कंफर्ट का डेफिनेटली डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम अगेन दीज शूज आर सुपर वर्सेटाइल। स्पेशली अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स आजकल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं सुपरस्टार्स आजकल कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूँ। नाउ इफ यू कैन अफोर्ड देम, well and good. Otherwise, these are a great budget alternative. Last but not the least, a teammate of mine have been using these shoes for 2 years now and he told me that he has been finding these comfortable। और यार वो 2 साल से यूज़ कर रहा है, तो obviously 650 रुपये के अगर शूज़ आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हो and that too rigorously, then I think it's a great deal. जो पहले 2 स्नीकर्स मैंने दिखाए हैं वो काफ़ी आइडेंटिकल हैं, ब्रांडेड और एक्सपेंसिव स्नीकर्स से, बट दिस वन दैट आई एम गोना शो यू इज प्रीटी मच इंस्पायर्ड and is similar to Puma RS series. Now the one that I'm talking about here is this one. As you can see for yourself कि ब्रांड ने काफ़ी ज़्यादा जो डिटेलिंग है ना वो Puma RS की तरह ही करी है, but at the same time brand has given a genuine and an original touch of itself too. But क्योंकि इनकी शेप और डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत Puma RS series से मिलती है, these one are a great alternative to these shoes. Now usually Puma RS series आपको 5 से 8,000 रुपये के मिल जाएंगे, which is again mostly affordable for a lot of people.
बट एट द सेम टाइम अगर वो थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं देन दिस इज द वन दैट यू कैन गो फॉर, बिकॉज ये करीब 1200 या 1300 के ही मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट, द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज शूज इज हाउ लाइट वेट दे आर। स्पेशली अगर आपको पूरे दिन के लिए पहनना है एक्सेट्रा, देन दीज शूज आर अ ग्रेट पिक। इनका सोल काफ़ी चंकी है विच ऑल्सो मेक देम ट्रेंडिंग, एंड स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज फॉलोइंग स्ट्रीट स्टाइल these days, then these ones are the ones that you should definitely go for. Moving on to one of the OG sneakers, the Chuck Taylors. The one that I'm talking about here are these. Now usually ये आपको 2-2.5 हज़ार के ऑनलाइन कहीं कहीं मिल सकते हैं, बट हमेशा ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं होती। सो व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू अ स्टोर या फिर अगर आप इनको सोर्स करेंगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की रेंज में मिलेगा। एंड अ बजट ऑल्टरनेटिव दैट आई गॉट फॉर दीज वन आर दीज फ्रॉम क्लेप। ये मुझे सिर्फ 750 रुपये के मिले थे ना। ऑफ कोर्स क्वालिटी में डिफरेंस है, कंफर्ट हालांकि मोर और लेस सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे लुक वेरी नाइस। आई लाइक द फैक्ट कि इस ब्रांड ने कॉन्वर्स चक टेलर्स पे जो वाइट कलर की स्टिचिंग होती है वो नहीं दी है, बिकॉज उसी की वजह से ये थोड़ा जो शूज़ है डिफरेंट लगता है, स्टैंड आउट करता है, और ऐसा नहीं लगता कि पूरा का पूरा रेप्लिका ही बना दिया हो। लास्टली अबाउट दीज शूज़, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर कॉलेज। 700-750 रुपये के अगर 6 महीने भी चल गए तब भी यू विल नो कि हाउ वर्सेटाइल दीज शूज़ आर। लिटरली दीज आर वन शूज़ जिनको मैं शॉर्ट्स के साथ, चीनोस के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर सकता हूँ। नाउ इफ यू समवन हु ऑलरेडी हैज चक टेलर्स, या फिर आपको हाई टॉप्स का शौक नहीं है, एंड इफ यू समवन हु लाइक्स गोइंग फॉर लो टॉप्स, और इफ यू आर बिगनिंग विद स्ट्रीट स्टाइल एंड स्नीकर्स, देन लो टॉप्स आर अगेन अ ग्रेट पिक। मुझे पर्सनली लो टॉप्स हमेशा शुरू से ही अच्छे लगते थे हाई टॉप्स के या मिड टॉप्स के कंपैरिजन में, बट ठीक है, नाउ आई हैव ग्रोन लव फॉर ऑल ऑफ देम। Now the next shoe, the next alternative that I've got is for Air Force One mustard color, and the one that I'm talking about here is this shoe. Now Nike Air Force One and this shoe do not have a lot of similarities, but अगर exact एक alternative shoe चाहिए सस्ते में, then this is one great pick. Now usually Nike Air Force One 14,000 से 24,000 की रेंज में आएंगे इस स्पेसिफिक कलर में, but these ones are only for rupees 1200, which actually makes them a good deal. Talking about the comfort, so ये shoes usual shoes से थोड़े ज़्यादा broad है, which actually gives a lot of space to your foot when you actually wear them, making them a little more comfortable. Lastly, these can be your statement sneakers जो आप कभी कभी पहने, but whenever you're gonna wear them, you're definitely getting compliments. Last sneakers जो है वो एक different niche के लिए, not everyone is fond of wearing those sneakers, but yes, अगर थोड़ी एज ज़्यादा है या ज़्यादा आपको क्लासी लगना पसंद है, then these sneakers can be a great alternative. The one that I'm talking about, the main sneakers or Onitsuka Tigers versus these ones, which actually are a great option if you do not have the budget to buy those. Now the brand that I'm talking about, उसमें वो शूज़ 6 से 8 हज़ार की रेंज में आते हैं। See, if you're a sneaker head और अगर आपको स्नीकर्स का कुछ ज़्यादा ही शौक है, then I would personally suggest save up और 6 से 8 हज़ार रुपये स्नीकर पे लगा लो, you'll also get a feel good factor. अगर आपको ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगते हैं और आपका वो बजट नहीं पहुँचने वाला, then this is the one that you can definitely go for, because these are just for 1100 rupees. Now the great part is the combination of suede and leather, which makes these shoes very premium. Last but not the least, comfort इसका decent है, but stitching quality इसकी काफ़ी अच्छी है. Now that was majorly about 6 budget alternatives to expensive sneakers. और again से कभी भी उन स्नीकर्स की कॉपी मत खरीदना, यू विल नॉट एन्जॉय इट, रादर गो फॉर दीज। एक बार ट्राई करके देखो, शायद ये आपके स्टाइल में सूट करे या ना करे, यू विल नो दैट ओवर टाइम। वंस यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग स्नीकर्स, वंस इट इज़ इन योर स्टाइल, only then go for the higher brand. I hope you found some amazing sneakers. मैं सारे sneakers के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Do tell me in the comments कि आपको personally इन सारे sneakers में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा. I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.